All right. Good morning, everyone. Today we are going to start with a topic which is super simple but very, very important when we are studying computer system architecture. Okay, and this is a part of your end syllabus. So we are just about to end the syllabus, and this is one topic that comes as a bonus because it's simple, easy, and interesting, and of course it's important. Okay, so in today's class, what will we learn? I will be introducing all of you to peripheral devices. Now we all know we have devices to input data into the system and this devices through which the system outputs, right? So two types of devices we will be discussing. Then we will be discussing a standard coding which enables us the peripheral devices to communicate with the system, right? So there is a way that the system communicates with these devices, and how it does, what is the coding, what is the type of coding, how many bits are involved, that all we will be discussing. Then we will be talking about the interfacing, the input and the output interfacing and how it's done. Through bus, through what kind of interface, whatever the block diagram is, we'll explain that, okay? Then coming to the module, then we will discuss how input-output, the interfacing of input-output differs from the memory bus. We all know ultimately जो data input हो रहा है, it is going somewhere inside the memory, है ना? या फिर it is somewhere inside the cache, immediate memory or main memory, right? So ultimately the interfacing that happens, it happens between input-output or the memory, and how it differs with each other. So we'll be discussing that. Okay, now these are the topics that we will be doing. Let me start and introduce you to this. So it says that computer organization में होता क्या है? We have organizational and operational units, है ना? हम बेसिकली जो यूनिट्स ऑपरेशनल होते हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करके उनको अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करना, करेक्ट? वी ऑल नो कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम में वी हैव स्टडीड देयर इज इनपुट, देन देयर इज माय प्रोसेसर, मेमोरी, and then there is output. This is the basic structure. Now with processor I mean I have complete control unit, ALU, and all of that, and of course my registers also lie in there, which are my immediate memory to go, है ना? Go to memory type होती है हमारी registers. So this is my basic diagram. Computer organization में ये operational units को हम interconnect करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो connected नहीं होंगे तो communication कैसे होगा, right? If you are not present here, will I be able to communicate if you are sitting in another class? Of course not. We need to be connected either through a call or physically or through any other interface. Very important. ठीक है? And that conform to the architectural specification. Very important. Configuration match होनी चाहिए. If I do not configure these devices with each other, will they be able to communicate? अगर हम दोनों की भाषा ही सेम नहीं है, I speak in Hindi, you don't speak in Hindi, will we be able to communicate? No, right? If you understand sign language and I do not know sign language, we will be able to communicate, right? No, of course not. So configuration clear होनी चाहिए, correct? A computer is of, okay, that line is gone. Is of no use if it does not communicate with external environment. अगर वो किसी और से communicate ही नहीं कर पा रहा तो उसका क्या काम है? कुछ नहीं. Okay? Now, a user provides instruction. मेरा काम क्या है? मैं कोई भी instruction देती हूँ, कोई command देती हूँ computer को. Okay? And through which device? Output device, है ना? Yes, किसने बोला? मैं output device के through कैसे input दूँगी? I am saying I am giving input. So input is through input device, है ना? Input device का example बताओगे? Printer.
Seriously? No. Keyboard. Input device. नाम सोचो. चलो चलो. Let's have a clear set of mind and a clear state to think. Input device कर क्या रहा है? Input दे रहा है ना? तो हम कंप्यूटर को इनपुट किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड, माउस और यस माइक्रोफोन. हे सिरी, हाउ आर यू टुडे? हाउ इज द वेदर? इनपुट ही है ना? या फिर टच? ऑल इनपुट डिवाइसेस. करेक्ट? करेक्ट. अब समझ आया है ना? So a user provides data to the computer with the help of input devices. Clear? अब कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर क्या कर रहा है? Whatever input comes to the computer, प्रोसेसर उसे क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है. अब प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है? और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज डिस्प्लेड टू द यूजर थ्रू आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर. सपोज मैंने प्रिंट कमांड दी तो प्रिंटर आउटपुट दे रहा है, या फिर मॉनिटर, या फिर स्पीकर. एब्सोल्युटली करेक्ट. समझ आ रहा है अब तुम लोगों को? ठीक है? सो वी आर क्लियर. इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट गया. और इन सब कामों के लिए हमारे पास क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरी पे होते हैं. दे आर नॉट इंटरनल. वो कनेक्टेड होते हैं. ठीक है? दे आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड दे आर एक्सटर्नल टू इट. ओके? नाउ थ्रू पेरिफेरल, दो पेरिफेरल डिवाइसेस आर नॉट एसेंशियल. क्या कंप्यूटर प्रिंटर के बिना काम कर सकता है? कर सकता है. क्यों? बिना प्रिंटर के कंप्यूटर चलता है ना. ठीक है? दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स बेसिक टास्क. बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस की. दे ऐड टू द यूजर्स एक्सपीरियंस. सो लाइफ इसी पे चलती है ना. यूज़र खुश होना चाहिए. अगर हम ही खुश नहीं है तो हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे? अब तुम्हें कोई बोलते जाओ इधर से 10 किलोमीटर जाके क्लास लो. द यूज़र विल से रहने दो. यूज़र एक्सपीरियंस ना. अगर कोई इधर से मेरे को बोले चलो मैं बग्गी ला रहा हूँ, अभी चलते हैं क्लास में, बिल्कुल चलूँगी. यूज़र एक्सपीरियंस, इट हैज़ टू बी द बेस्ट. ठीक है? सो वी कैन से that peripheral devices are not a part of the computer system architecture, not the main part. Okay? Peripheral more loosely refers to a device that is external to the computer. External मतलब बाहर का डिवाइस है. अब इस सेक्शन में हम देखते हैं कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस हम यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ. आ जाओ. सबसे पहला इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड. कीबोर्ड कैसा कंटेंट हमें यूजर को देता है? टाइप्ड कंटेंट, है ना. इट अलाउज यू टू टाइप एंड इनपुट कंटेंट टू योर कंप्यूटर. कीबोर्ड है ना. हैव यू ऑल सीन अ कीबोर्ड? नहीं तो दैट्स अ डायग्राम. आई एम श्योर वी ऑल हैव सीन इट. ओके? अ माउस. माउस अलाउज अस टू पॉइंट. इट्स अ पॉइंटिंग डिवाइस ना. इट अलाउज अस टू पॉइंट एंड सिलेक्ट. हम पॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. ठीक है? अगर हम होवर करते हैं तो इट स्कैन्स थ्रू. होवर करके वो सिर्फ हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते. जब हम उसको एक बार क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम उसको ओपन करते हैं. बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ माउस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज टच पैड. हर किसी का फोन टच पैड है? बिल्कुल, आजकल तो है ना. ठीक है? सो टच पैड. अगर आप अपने सिस्टम में, सिस्टम की बात करो या लैपटॉप की बात करो, एक पैड आता है जिसको आप 2 फिंगर से टच करके ऊपर नीचे कर सकते हो. मैक में भी होता है. दैट्स ऑल्सो योर टच पैड. ओके? देन माइक्रोफोन. एवरीवन यूजेस अ माइक्रोफोन, है ना, अपना फोन का. स्कैनर.
Scanner, guys, scanner. What does a scanner do? It scans or it inputs any hard copy and it converts it into a soft copy and feeds it into the computer. ठीक है? So we know what's a scanner. Then digital camera, digicam, webcam, टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, हम कुछ भी लिखते हैं सिस्टम पे लिखता है. ओके, देन वी हैव लाइट पेन, योर स्टाइलस, वी हैव योर बायोमेट्रिक्स. बायोमेट्रिक होता है ना, फिंगरप्रिंट रखते हो, यू आर प्रेजेंट, है ना. एंड देन वी हैव बारकोड स्कैनर, जिससे तुम्हारी बिलिंग होती है ना. बिलिंग स्टेशन पे लोग बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं और बिलिंग होती है. वी आर ऑल क्लियर विद दीज डिवाइसेस? ठीक है. कमिंग टू आउटपुट. अब इनपुट ले लिया, आउटपुट करने के लिए भी कुछ चाहिए ना. तो फोटोग्राफ से ही पता चल रहा है क्या है मेरा. प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, है ना. ये सारी चीज़ें क्या है? डिवाइसेस जो हमें कंप्यूटर से निकलता हुआ सामान परसीव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, चाहे वो एक पेपर हो, चाहे वो एक पिक्चर हो, चाहे वो कोई गाना हो, कुछ भी. ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस. अच्छा, किसी ने ये देखा है मेमोरी कार्ड? पक्का? चलो. सो दिस इज व्हाट वाज यूज्ड व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग फोन्स. एक मेमोरी कार्ड डलता था, 32 KB, MB, 64 MB. ठीक है. अब तो GB भी कम लगता है ना. अब तो 1 TB चाहिए होता है फ़ोन, राइट. सो दिस वॉज अ मेमोरी कार्ड दैट यूज टू स्टोर मेमोरी. तो हम क्या करते थे, अपने फ़ोन के जो सारी पिक्चर्स होती थी ना, मेमोरी कार्ड में डाल देते थे और फिर उसको संभाल के रखते थे. अगर आप लोग DSLR वगैरह SLRs यूज़ करते हो, दे आर अ टाइप ऑफ कैमराज, उनमें भी ये मेमोरी कार्ड डलते हैं. अब मेमोरी कार्ड हमने मेमोरी स्टोर करने के लिए यूज़ कर लिया. अब उससे हम रिट्रीव और स्टोर उसमें चीज़ें कैसे करते हैं? थ्रू अ कार्ड रीडर होता है. ठीक है. आजकल USB केबल्स भी आ गए, USB आ गई है जिसमें आप कार्ड रीडर, HDMI, C टाइप सारा कुछ आता है एक साथ. ठीक है. तो ऐसी USBs भी आ गई है अब. देन ऑफ कोर्स वी हैव CD, DVD, Blu-rays, हार्ड डिस्क, है ना. Many other storage devices that allows me to externally store my data from my system. कभी कभी मुझे बैकअप चाहिए, मुझे पता है मेरा सिस्टम मरने वाला है ना, सिस्टम की एज. बट एनीवेज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, मुझे पता है कि मेरी बहन आके डिलीट कर देगी. मैं कॉलेज में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरा दोस्त आएगा डिलीट कर देगा मेरा काम. सो आई टेक अ बैकअप. So these are external devices on which I can take a backup and keep it with me. Okay? Now, next topic. Guys, I understand you are a little chatty today, but let's make sure that we pay attention for a while. Okay? Ab, ASCII stands for, let me read, American Standard Code for Information Interchange. मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, एक कोड है जो मुझे अलाउ करता है इंफॉर्मेशन अदला बदली करने में, इंटरचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. है क्या इस कोड में? अल्फ़ाबेट्स भी है, न्यूमेरिक भी है. तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है. अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विद पीपल एंड कंप्यूटर. बेसिकली डिवाइसेस किसके बीच का कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट कर रहे हैं? ह्यूमन, पीपल एंड कंप्यूटर. करेक्ट. दे ट्रांसफर अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द डिवाइसेस. अगर मैं कंप्यूटर को बोल रही हूँ, आई एम डबल क्लिकिंग दिस फोल्डर, ओपन इट. कंप्यूटर बोला ओके डन मैम. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट गोज with the information about the grid. means अगर मेरे पास ये मेरी स्क्रीन है, मुझे पता है इधर मेरा माई कंप्यूटर का शॉर्टकट है.
मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ तो इस कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू अल्फा न्यूमेरिक कोड। इस कोऑर्डिनेट पे कौन सा आइकन है उसकी इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू ASCII कोड, करेक्ट? ये इंफॉर्मेशन जाती है और फिर पता चलता है कि डबल क्लिक हुआ है तो ओपन करो, सिंगल क्लिक हुआ है सिलेक्ट करो, राइट क्लिक हुआ है ऑप्शंस दिखाओ, ठीक है? ASCII code uses 7 bits to 7 bits to code, सॉरी, कितने बिट्स यूज होते हैं कोडिंग के लिए? 7 बिट्स एंड 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। कैपिटल को अलग लेता है, स्मॉल को अलग लेता है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, नंबर्स है, सब कुछ अलग अलग कोडेड है। और ये कितने बिट के कोड है? 7, ओके? Out of 128 characters, out of 128, 94, देखो इधर लिखा है, आई एम रीडिंग थ्रू दिस, 94 are printable and 34 are not printable. So basically not printable मतलब वो कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है, मूव लेफ्ट मूव राइट, ठीक है? सो 34 आर नॉन प्रिंटेबल, इंटरनल असेसमेंट में MCQ में आ सकता है, ठीक है? यूज्ड फॉर वेरियस कंट्रोल फंक्शन, मैंने बोला ना कंट्रोल अप डाउन लेफ्ट राइट। अच्छा, अब इन 94 में क्या है? 26 अपर केस है, 26 लोअर केस है, 10 डिजिट्स है 0 to 9, है ना? और 32 स्पेशल कैरेक्टर्स है। वी नो 94 में 26 अपर केस, 26 लोअर केस, ठीक है? 10 क्या है मेरे? नंबर्स, और 32 क्या है मेरे? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? बढ़िया, ठीक है? सो वी आर क्लियर विद दिस। अब आ जाते हैं स्पेशल या कंट्रोल कैरेक्टर क्या होता है। फॉर्मेट के लिए यूज होते हैं, बैकस्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, रिटर्न, या फिर कोई सेपरेटर होता है, ठीक है? एंड देयर आर मेनी अदर इंफॉर्मेशन लाइक एंड ऑफ टेक्स्ट, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, ये भी इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू देते हैं? 34 कंट्रोल कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, ओके? अब आ जाते हैं इंटरफेसिंग पे, सीधा डायग्राम पे आते हैं, ठीक है? क्योंकि डायग्राम से अच्छा तुम समझ ही नहीं पाओगे। मेरे पास क्या है? अंदर मेरा प्रोसेसर है, इंटरनल कंप्यूटर के अंदर क्या है मेरा? प्रोसेसर। ये हमें पता है कहाँ है? सिस्टम के अंदर, ठीक है? ये मेरा है इंटरनल। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन साइलेंस, डोंट टेक पिक्चर नाउ, ओके? Reasons I will disclose after some time, okay? Then we have a few devices that are external, clear? इंटरनल मतलब कंप्यूटर के अंदर है, एक्सटर्नल मतलब कंप्यूटर के बाहर है। अब मुझे अंदर वालों को बाहर वालों से, बाहर वालों को अंदर वालों से कम्युनिकेशन करवानी है। दैट विल हैपन थ्रू कनेक्शन। कनेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब ये कनेक्शन कैसे बनेगा? ये देखो, इंटरफेस, ये इंटरफेस क्या कर रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो ये कौन सा इंटरफेस है? IO इंटरफेस, करेक्ट? अब ये कनेक्शन कहाँ हो रहा है? बसेस पे। बसेस क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ कनेक्शन, ठीक है? जो हम यूज़ करते हैं टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब किस तरह से कनेक्टिविटी हो रही है, उसमें से एक टोपोलॉजी है बस, जिसमें एक सिंगल बैकबोन होता है और उस पर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, याद रखना।
जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे तभी काम आएगा, जब एक सिंगल बैकबोन होती है, मतलब एक सिंगल तार होती है और उसके साथ कनेक्शंस होते हैं कुछ कुछ डिवाइसेस के। आजकल वो दिवाली की लाइटें लग रही है घर में, है ना, तो एक बैकबोन सिंगल तार होती है, उसके साथ और लड़ियाँ लगती है। अगर बैकबोन ख़राब हुई तो कोई नहीं चलने वाली। एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक बैकबोन है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, लेकिन अगर वो बैकबोन ख़राब हो गई तो कनेक्टिविटी आगे ख़त्म। ठीक है, दिस इज़, चलो दैट इज़ अनदर थिंग, बट ये समझो बसेस से मेरी कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये कौन सी बस है? इनपुट आउटपुट, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अलाउ कर रही है प्रोसेसर को कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखो, बसेस भी 3 तरह की है। कौन सी? कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है। कितने कैरेक्टर्स है कंट्रोल के लिए? 34। फिर है एड्रेस, जो क्या बताती है? जिस फोल्डर को या जिस मेमोरी लोकेशन को मैं एक्सेस कर रही हूँ उसका एड्रेस बताती है। फिर आता है मेरा डेटा, जो एक्चुअल डेटा फेचिंग में काम करता है। ठीक है, सारी चीज़ें बाइफरकेटेड है। क्या सारी चीज़ें एक बस पे काम कर सकती है? देखो, इधर लिखा है CPU कैन कम्युनिकेट विद मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इन 3 वेज। पहला, यूज सेपरेट बसेस, जो हमने पहले देखा। ठीक है, हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग बसेस यूज़ कर रहे हैं। या फिर यूज़ अ सिंगल बस फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ये देखो, यही बस, ये जो डेटा एड्रेस कंट्रोल है, इसी बस पे मेमोरी भी एक्सेस हो रही है और इनपुट आउटपुट भी एक्सेस हो रहा है, एक ही बस पे, सॉरी। ठीक है, और तीसरा, यूज अ सिंगल बस फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एंड कॉमन कंट्रोल लाइंस। मतलब एक सिंगल बस पे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है और कंट्रोल लाइन भी कॉमन है। ठीक है, 3 तरह से, या तो सब अलग अलग, या तो सब एक साथ, या फिर सब एक साथ और कंट्रोल लाइन भी एक साथ। ठीक है, चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस। मैंने आंसर भी बता दिए, वो अलग बात है। पहला क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट कंफर्म टू द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन। पहली स्लाइड का पहला लाइन था। आंसर्स मत देखो, जिस चीज़ के लिए मना करते हैं ना इंसान, वही देखता है। अब जवाब दो, चलो चलो जल्दी। क्या डैश रेफर्स टू ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन? क्या पढ़ रहे हैं हम? ओके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, डैश डिवाइस ट्रांसलेट्स द हाँ जी, आउटपुट डिवाइस, पक्का? चलो, ASCII codes use dash bit, दिख रहा है क्या? इनपुट आउटपुट इंटरफेस हेल्प्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। समझ आ गया सबको? परफेक्ट। ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड आवर इनपुट आउटपुट, हाँ हाँ कर, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। ठीक है, so today we've discussed about input devices, output devices, which are nothing but my peripheral devices, storage devices, ASCII coding, the interfacing that happens, and the communication and why it is important. We are clear with today's class? All right, thank you.